नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्राजोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि कल 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है कि 3 दिनों तक चलने वाला है और यहाँ पर जो भी कुछ होगा इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम इसके इंट्रो को देखेंगे, इसके सिग्निफिकेंस को जानेंगे, इसके अलावा डे 1 में क्या हुआ है इसको देखेंगे और बाद में इसका ओवरव्यू देखेंगे। तो दोस्तों, इन्वेस्टर समिट के दौरान 5 से 6 मिनट की वीडियो रिलीज की गई है। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। अगर आपने इसको देख रखा है तो आप टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग इसको स्किप कर सकते हैं। World-class infrastructure, enabling policy framework, business-friendly governance. These are the 4 elements propelling Uttar Pradesh towards a global takeoff, making it New India's growth engine. Following the growth principles laid down by India's visionary Prime Minister Shri Narendra Modi, Uttar Pradesh is on its way to becoming the most preferred investment destination for global investors and industrialists. One of the fastest growing Indian states, UP ranks high in ease of doing business with zero tolerance policy against crime and corruption. For its cultural vibrance, value system, and 250 million populace. UP is not only India's single largest consumer market, but also a bountiful supplier of skilled human resources. The state has a vast land bank and robust policies to ensure the availability of land for investors to do business. A number of sector-specific industrial parks are being developed. Blessed with natural resources, fertile land, and perennial rivers, the state offers tremendous opportunities in agro, food processing, dairy, and textiles manufacturing sectors. With 96 lakh MSMEs, Uttar Pradesh is Digital India's biggest hub of mobile manufacturing, an emerging data center hub, फार्मा एंड एजुकेशनल हब। यूपी में जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, उसे व्यापारियों का भरोसा लौटा है, बिजनेस के लिए सही माहौल बना है। बीते वर्षों में यहां की प्रशासनिक क्षमता और गवर्नेंस में भी सुधार आया है। Inspired by PM's Vocal for Local movement, UP is high on promoting indigenous products under One District, One Product project. Our
defense corridor is helping India become Atmanirbhar in the defense sector. The state is a haven for cultural, spiritual and eco-tourism businesses too. Overcoming the challenge of being landlocked, UP's dedicated freight corridors, inland waterways, expressways and airports provide quick, cost-effective, multimodal logistics solutions for the movement of manufactured goods around the global market. World-class, power-rich infrastructure with 9 operational and 10 upcoming airports, 4-lane interstate highways, and the futuristic rapid rail transport system shall make every nook and corner of the state easily accessible for the world, thus opening up entire state for investment, including the Purvanchal and Bundelkhand areas. To ensure an investor-friendly ecosystem based on transparency and trust, the government of Uttar Pradesh has come up with Invest UP 2.0, a comprehensive investor services framework under which a single-window MOU monitoring portal, Nivesh Sarathi, has been developed to provide one-stop solutions for investors. The state government has formulated New Industrial Investment and Employment Promotion Policy 2022 and more than 25 sectoral policies to attract investments in various focus sectors. Catapult the state towards becoming a $1 trillion economy, we followed a global to local approach. After thorough consultation with all stakeholders, the newly formed policies were showcased internationally, then nationally, and then to the existing domestic investors within UP, generating immense global investor interest. Today, the Uttar Pradesh Global Investors Summit 2023 brings together policymakers, corporate leaders, business delegations, academia, think tanks, and leaders from across the globe to collectively explore business opportunities and forge global investment ties in Uttar Pradesh. Opportunities shall also spike employment opportunities for the state's young and skilled workforce. As India enters its Amrit Kaal, the golden period of independence, the government of Uttar Pradesh, under the guidance of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, ensures you all of the most conducive business environment and a vibrant ecosystem for sustainable growth that shall play a pivotal role in India's journey to become a $5 trillion economy. Come aboard on our global takeoff to become the most favored business destination. उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। Uttar Pradesh, New India's growth engine. ये नया उत्तर प्रदेश है विकास की राह। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार राज्य को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहती है और ये काफी कम समय में वो करना चाहती है। इसके अलावा वो उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को भी 4 गुना से अधिक बढ़ाने जा रही है। इन्वेस्टर समिट बहुत ही महत्वपूर्ण है सरकार के लिए। सरकार ने इससे पहले 2018 में एक इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज की थी और सरकार का प्लान था कि 2021 के अंदर फरवरी या मार्च में एक इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज हो, लेकिन कोविड-19 के कारण यहाँ पर इसको डिले कर दिया गया और इसको 2023 में रीशेड्यूल कर दिया गया। अगर हम दोस्तों इस इन्वेस्टर समिट की बात करें तो इसमें करीब 34 सेशन होने वाले हैं जो कि 3 दिन तक चलेंगे और हर रोज 10 सेशंस होंगे। इसके अलावा लास्ट डे में 11 सेशंस होंगे। इसमें डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, उत्तर प्रदेश के बड़े प्रोजेक्ट समेत बहुत सारी चीजों पर चर्चा होंगी। इसमें यूनियन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर जैसे कि अमित शाह, नितिन गडकरी, हरदीप सिंह पुरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी जैसे बड़ी शख्सियत शामिल होंगे। इसके अलावा यहाँ पर कंट्रीज की बात करें तो इसमें सिंगापुर, नीदरलैंड, जापान, यूके, डेनमार्क समेत बहुत सारे देशों से डिप्लोमेट और बिजनेस टाइकून आने वाले हैं। इन 3 दिनों के अंदर कॉर्पोरेट लीडर, थिंक टैंक, एकेडमिया, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ पार्टिसिपेट करने वाले हैं। दोस्तों, इन्वेस्टर समिट से करीब 29.92 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट की गई है। इतने के एमओयू साइन किए जाएंगे
इससे करीब 92.5 लाख जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसको हम धीरे धीरे देखेंगे कि कितना ये सफल हो रहा है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि करीब इसके लिए 18,643 MOUs भी साइन किए गए हैं इस इन्वेस्टर समिट में। दोस्तों यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट की जो भी चर्चाएं देखी जा रही हैं उसमें रिलायंस ने 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कमिट किया है नेक्स्ट 4 ईयर्स के अंदर। इसके तहत उन्होंने MOU भी साइन किया है। इन्होंने कहा है कि हमने ऑलरेडी 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंप्लीट किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा हम जियो का जो 5G नेटवर्क है ये टाउन और विलेज के अंदर भी पहुंचाएंगे। इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने कहा है कि हम $100 बिलियन के एक्सपोर्ट का टारगेट रख रहे हैं इंडिया के थ्रू। दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक स्मार्टफोन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है और इसके बहुत सारे यूनिट नोएडा के अंदर सिचुएटेड है। इसने कहा है कि 50 से 65% तक का जो भी स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका मैन्युफैक्चरिंग का वर्क उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम जैसे कि PLI स्कीम, इन सब पर भी चर्चा हुई। तो दोस्तों जो यहाँ पर इन्वेस्टर समिट अभी आप देख रहे हैं, इन्वेस्टर समिट के अंदर बड़े बड़े बिजनेस टाइकून आ रहे हैं। इसका प्रभाव जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जो 500 करोड़ 100 करोड़ का निवेश करते हैं उन पर भी पड़ता है। इस इन्वेस्टर समिट से बहुत सारा प्रभाव उन पर पड़ सकता है, जिससे जो छोटा निवेश है ये भी बढ़ता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हम रियल एस्टेट को देखते हैं, तो इन सारे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा स्कोप के चांसेस हैं और इस क्षेत्र में निवेश की बहुत बड़ी संभावना है। तो इस पर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल अभी दोस्तों इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश की जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इस पर चर्चा की जाएगी। जो यहाँ पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इसके अलावा जिसकी ज़रूरत है इस पर भी चर्चाएँ होंगी। और इसके अलावा जो यहाँ पर एमर्जिंग मार्केट है इस पर भी चर्चा होगी और जिनको एमर्ज किया भी जा सकता है जो कि अभी बहुत ही नीचे हैं उन पर भी चर्चाएं होंगी। तो ये चर्चाएं काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है राज्य के आने वाले सालों के लिए। और ऐसे ही बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2 साल 3 साल के अंतराल में सरकार करती रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों सरकार ने इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 15 देशों में अपना एक स्टेट का डेलीगेशन भेजा था और उस डेलीगेशन ने बहुत सारी चीज़ों पर चर्चाएं की थी, मार्केट को एक्सप्लेन किया था डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। और इसके अलावा 10 डोमेस्टिक रोड शो भी ऑर्गेनाइज किए गए थे। सक्सेसफुली ये सब कंप्लीट हुआ, तो इससे इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, इसको एक हाइप मिली वहाँ से और बहुत सारा निवेश इस क्षेत्र में आया। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट है वो तो हमें आने वाले सालों में ही पता लगेगी कि कितना हुआ। इसके लिए एक ट्रांसपेरेंट पोर्टल भी है जहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी, सरकार ने आश्वासन दिया है। अब दोस्तों इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। तो ये तो सारी बातें रहीं। तो मेन टारगेट उत्तर प्रदेश का है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का। तो उसमें निवेश बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य के पास इतना धन नहीं है कि वो खुद से इतनी इंडस्ट्री सेटअप कर पाए, तो उसके लिए उन्हें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। बिना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ये सब नहीं हो पाएगा। और उन्होंने जिस प्रकार सेक्टर्स को डिफाइन किया है वो काफ़ी अच्छा है, यानी कि निवेश के लिए लैंड पार्सल भी यहाँ पर अवेलेबल है, अच्छी कनेक्टिविटी भी है और एक ह्यूज लेबर पावर भी है जो कि यहाँ पर काम करेगी। ज़रूरत यहाँ पर स्किलिंग की है, इन्वेस्टमेंट की है और डेडिकेटेड प्लान की है जिस पर अब सरकार काम कर रही है। तो पहला दिन यहाँ पर समाप्त हो गया है। इस पर बहुत सारे जो बिजनेस टाइकून इस दिन आए थे उन्होंने काफ़ी कुछ बोला है और इस बार सरकारें चाहती हैं कि हर क्षेत्र में निवेश हो। पहला जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें जो इन्वेस्टमेंट था वो ज़्यादातर वेस्ट साइड नोएडा के साइड ही था, लेकिन अब इस बार एक्सप्रेसवे नेटवर्क लगभग ऑल ओवर उत्तर प्रदेश बढ़ गया है और यहाँ पर लैंड पार्सल भी सरकार ने आइडेंटिफाई कर लिया, एज वेल एज कई सारे क्षेत्रों में एक्वायर कर लिया है। तो इसलिए अब उम्मीद है कि निवेश की संभावनाएं बनेंगी और निवेश होगा जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। आने वाले दिन में क्या है इसके बारे में अपडेट आती हैं और तीसरे दिन में क्या अपडेट आएगी, सब पर चर्चा करेंगे और अंत में जो इसका ओवरऑल जो भी इसमें महत्वपूर्ण चीजें होंगी इन सभी पर चर्चा करेंगे। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।